Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So we were studying about the multiple integration, and in the last lecture we have discussed about the triple integration. Now we are moving to the different topic which is called Dirichlet theorem, and this theorem is applicable for the triple integration. Actually we will find the value of triple integration of algebraic type of the functions directly with the help of this formula. So let us see the statement of this theorem. क्या है? If V is the region bounded by positive quadrant given by x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Actually these are the directions of positive x axis and positive y axis. तो ये दोनों तो positive x positive y axis है, which is first quadrant actually. Along with that, the straight line in 3 dimension x plus y plus z less than equal to 1. Then अब देखो statement देखो बहुत ध्यान से. This statement, the triple integration given like this, the triple integration given like this, triple integration V for volume. So some powers of x, some powers of y, some powers of z, like that, x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz is equal to gamma l into gamma m into gamma n whole upon gamma l plus m plus n plus 1. यानी तीनों का सम करेंगे और फिर प्लस 1 करना है. सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द ट्रिपल इंटीग्रेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच देयर विल बी सम पावर्स ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड की कुछ रियल पावर्स होंगी, तब आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना है एंड यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम. एक इसका एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं लियोवेलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम. इसके बारे में सुनो. इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ देखो ये if x y z are all positive such that there is the sum x plus y plus z in between two values h1 to h2, it will be given in the question, then the triple integration written like this. देखो ध्यान से देखना इस वाले इंटीग्रेशन को. एक्सटेंशन में क्या एक्स्ट्रा है ये आपको देखना है. there will be some function f of x plus y plus z. There will be some function of f containing the sum of three variables x plus y plus z. देखो ये चीज इसमें एक्स्ट्रा हो गई. Along with x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1. ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सेम लिखा है आगे, but there may be some function of x plus y plus z. Then this is called extension of Dirichlet theorem और Liouvel's theorem. तो इसका आंसर क्या होगा? It is equal to gamma L into gamma M into gamma N whole upon gamma L plus M plus N. एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस 1 है. ओरिजिनल Dirichlet थ्योरम में प्लस 1 है, L plus M plus N प्लस 1, और यहां एक्सटेंशन में प्लस 1 नहीं है. ठीक. विद दैट सिंगल इंटीग्रेशन, इसके पीछे लिखा है h1 से h2, ये h1 लिखा है यहाँ पर, लिमिट h1 से h2, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल अप्लाई फ्रॉम 0 टू h. ये हम अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम केसेस में ये होगा. फंक्शन ऑफ h, कैन यू सी इट? ये क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ h. देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह h बना दिया, f ऑफ h, एंड h टू द पावर, ये अलग से एक्स्ट्रा, h टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1, l प्लस m प्लस n माइनस 1, ये अलग से एक्स्ट्रा. फंक्शन ऑफ h मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस x प्लस y प्लस z डायरेक्ट बाय द h, एंड आफ्टर दैट राइट एक्स्ट्रा h हैविंग द पावर्स l प्लस m प्लस n एंड माइनस 1. क्या डिफरेंस आ रहा है? यहां सीधा एल एम एन है, नीचे सम और प्लस 1. यहां एल एम एन है, नीचे बस तीनों का सम है, प्लस 1 नहीं है. बट एक्सटेंशन में एक इंटीग्रेशन और है, वहां पर कोई इंटीग्रेशन नहीं है. मोस्टली 0 टू h लिमिट होगा, बट इन जनरल वी राइट h1 टू h2. फंक्शन ऑफ h मीन्स वी विल रिप्लेस दिस x प्लस y प्लस z विद न्यू वेरिएबल h and h to the power l plus m plus n minus 1.
और इसके साथ में एक चीज और होगी यहां पर जिसको हम कहेंगे dh, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू h। किसके रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना होगा? h के, तो dh और लिखा होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आज हम इन दोनों के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले के फिर सेकंड वाले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और गेट एग्जाम में और जितने भी यूपीएससी आईएएस के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि पहला ही सवाल लिखा है आपके सामने, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिरिचलेट फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 2006 में 15 मार्क्स का पूछा गया है, आईएएस के लिए एग्जाम होता है। और अगेन ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा गया था उसी ईयर 20 मार्क्स में। देखो कैसे पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका दूसरा फॉर्म, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन वी dx dy dz विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कैसे करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीधा साधा तरीका है इसका, आप ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। पहला काम है कि जो गिवन इलिप्सॉइड है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड आफ्टर दैट ये जो पहला टर्म है ना सर, ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट वाला टर्म, इस फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट वाले को, इसे आपको u मानना है, u। सेकेंड टर्म को, इस सेकेंड टर्म को v मानना है, और थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म ये वाला, इसे w मानना है। बस ये पैटर्न है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कंसीडर द फर्स्ट टर्म एज u, सेकेंड v, थर्ड w। कैसे? ऐसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू u, ये दिख रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर v, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर w, एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम देयर। तो अगर आप यहां से x निकालेंगे तो a स्क्वायर इधर पहुंचेगा, फिर रूट लेंगे तो a u टू द पावर हाफ हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू b v टू द पावर हाफ, ये भी आप निकाल सकते हैं, एंड z इक्वल टू c w टू द पावर 1/2। सही है? आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx by differentiating the right hand side a by 2 u to the power minus half du। समझ गए होंगे आप u to the power half का डेरिवेटिव। सिमिलरली dy, तो क्या होगा, b by 2 v to the power minus 1/2 dv, एंड थर्ड dz इक्वल टू c by 2 w to the power minus 1/2 dw। पावर पहले पावर से एक कम करते हैं ना, तो 1/2 पहले आएगा, 1/2 minus 1, इट विल बिकम minus 1/2, राइट? सो dx dy और dz, इन तीन वैल्यू को आप निकाल लेंगे। After that, the volume is equal to triple integration v dx dy dz. This is called volume of the solid or solenoids. तो यहां पर ये 3 डायमेंशन का जो भी सॉलिड होगा, यहां ये एलिप्सॉइड है 3 डायमेंशन का, जैसे एग होता है ना, अंडा, उस शेप का एलिप्सॉइड होता है। तो dx dy dz is the volume and put these values, these 3 values in place of dx dy dz। तो सर जब आप dx dy dz की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दोगे, a by 2 b by 2 c by 2 will become abc by 8, ये हो जाएगा ना, abc by 8, and u to the power minus half, v to the power minus half, w to the power minus half along with du dv dw। ये बात समझ में आ गई? कैसे हुआ है? We are substituting the values of dx dy dz here and then we can find it a by 2 b by 2 c by 2 like abc by 8 और u v w की पावर माइनस हाफ। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है UVW वाला, वो हमें इससे कंपेयर करना है एक्स वाई जेड टू दी पावर से, जैसे कि एक्स वाई जेड UVW की तरह काम कर रहे हो। मींस इनकी पावर्स को u माइनस हाफ, v माइनस हाफ, w माइनस हाफ को वी हैव टू कंपेयर दीज पावर्स विद l माइनस 1, m माइनस 1, n माइनस 1। कैसे? देखो ऐसे, abc by 8 तो आउटसाइड द इंटीग्रल हो जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, एंड u टू द पावर माइनस हाफ विल बी कंपेयर्ड विद l माइनस 1, v to the power minus half will be compared with m minus 1, and w to the power minus half is compared by n minus 1. du dv dw like the differential coefficient, and then find the values of lmn, means l minus 1 equal to minus half, so l will be 1/2. Similarly m will be 1/2 and n will be 1/2. Then you have to write by Dirichlet formula or theorem that triple integration of x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1 dx dy dz is equal to gamma l, gamma m, gamma n whole upon gamma l plus m plus n plus 1.
ये आपको फॉर्मूला लिख देना है बस एक बार में उसका। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, ये जो हम लिख रहे हैं ये, ठीक है, ये डिरिचलेट का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद L की वैल्यू 1/2 1/2 1/2, तो गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ, और नीचे तीनों का सम 3/2 + 1 विल बिकम 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो गामा 1/2 √π √π √π, और ये 3 गामा 5/2 का एक्सपेंड किया तो 3/2 1/2 इंटू √π, सो एक √π से √π कैंसिल कर देना, ये वाला ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप। उसके बाद √π इंटू √π पाई हो जाएगा, और ये क्या होगा 3/2 इंटू 1/2, तो क्या होता है 3/2 इंटू 1/2 3/4 हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट ऑक्टेंट में v इज इक्वल टू पाई ABC/8 होगा, सॉरी 6 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का वॉल्यूम आ गया। कभी कभी क्या होगा, कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसका टोटल वॉल्यूम कभी लिखते हैं वो टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम 8 टाइम्स ऑफ पाई ABC/6 इस तरह भी लिख देते हैं। तो फाइनली इसका जो आंसर है टोटल वॉल्यूम का वो कुछ इस तरह भी कुछ बुक्स में आप देखेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 डायमेंशन में 8 ऑक्टेंट होते हैं। कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8। तो 3 डायमेंशन के 8 ऑक्टेट होने की वजह से 8 से और मल्टीप्लाई करते हैं, और हम इसको फिर एक्सपेंड करके ठीक करके लिखते हैं, तो ये 4/3 हो जाता है ऐसे। तो ये वाला आंसर भी आप कभी कभी एग्जाम में देखोगे, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप इसको। लेकिन ये पाई ABC/6 कैसे निकाला जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट फॉर्मूला। ये 8 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज 8 ऑक्टेट, देयर आर 8 ऑक्टेट्स इन द 3 डायमेंशन, तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई होकर के इस तरह से आंसर 4/3 पाई ABC भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस x अपॉन a होल पावर 1/2 y अपॉन b होल पावर 1/2 z अपॉन c होल पावर 1/2 इक्वल टू 1। अब आप बहुत जल्दी से समझ सकते हैं कि जो पहला वाला फर्स्ट वाला है, दिख रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट टर्म को सर, हाँ जी, इस फर्स्ट टर्म को x अपॉन a का होल स्क्वायर जो लिखा है, इसे आप u, दूसरे को v और तीसरे को w मानेंगे। फिर यहां से स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और x निकालेंगे तो au स्क्वायर होगा। सिमिलरली y विल बी b स्क्वायर एंड z विल बी cw स्क्वायर। उसके बाद dx तो 2au du, dy 2bb dv, dz 2cw dw। वॉल्यूम लगाओ dx dy dz। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2a 2b 2c कुल मिलाकर 8 abc हो जाएगा। u v w सिंगल पावर्स हैं, 8 abc बाहर इंटीग्रेशन के u v w सिंगल पावर के साथ, एंड वी विल कंपेयर दिस विद l - 1 m - 1 n - 1। किससे कंपेयर करेंगे? l - 1 m - 1 n - 1 से कंपेयर कर देंगे आप इसको, ठीक है, ऐसे। और फिर ये फॉर्मूला है डिरिचलेट फॉर्मूला, x y z की पावर l - 1 m - 1 n - 1 इक्वल टू गामा l गामा m गामा n होल अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। अब आप देख के बताओ, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी ऐसे, तो गामा 2 गामा 2 गामा 2 अपॉन तीनों का सम 6 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह से आप गामा 2 1 1 1 होता है, 7 को एक्सपेंड करेंगे तो 6 5 4 3 1 4 3 2 इंटू 1 ऐसे, और 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ABC/90। यहां पर भी आप यही कर सकते हैं, जो टोटल वॉल्यूम की बात है, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ABC/90, ABC/90। तो इस 90 को ऐसे, बाकी कुछ कैंसिल वैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये होगा 4 ABC/45, क्योंकि 3 डायमेंशन में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो 8 से टोटल मल्टीप्लाई करके ये आंसर भी आपको कभी किसी बुक्स में देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर फर्स्ट वैल्यू आपको पूछेंगे तो वो इतना आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो जो डिफरेंट आंसर आपको दिखाई देंगे कभी कभी वो इस 8 ऑक्टेट की वजह से भी दिखाई देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि फर्स्ट सेकंड टर्म्स को किस तरह से मानना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा आपको जो लियो वैलिस थ्योरम्स पर बेस्ड है। उसकी पहचान है दैट देयर विल बी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड नजर आएगा आपको। जैसे ये सवाल लिखा है, evaluate triple integration x to the power minus of y to the power minus of z to the power minus of along with 1 minus x minus y minus z dx dy dz extended to all positive values of variables x y z subject to the conditions x plus y plus z less than equal to 1. ओके, तो जो गिवन इंटीग्रल है ना सर ये i, इसमें आप ध्यान देंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड को माइनस कॉमन लेने पर ये टर्म आपको दिखाई देगी x प्लस वाई प्लस जेड की। ये टर्म आपको दिखनी चाहिए। बताओ समझ में आ रहा है कुछ? x प्लस वाई प्लस जेड की। तो बस ये समझ लेना कि इसमें एक्सटेंशन लगेगा, लियो वैलिस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। क्या था वो? कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz will be equal to gamma l gamma m gamma n होल अपॉन l प्लस m प्लस n ओनली। 1 नहीं है इसके अंदर। और इंटीग्रेशन 0 to 1, वैसे ये है 1 और इसकी लोएस्ट लिमिट जो होती है 0, जो यहां से शुरू होती है। इसमें नहीं दिया है लेकिन वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो वहीं से शुरू होता है। तो लिमिट 0 to 1 होगी सभी क्वेश्चंस में, 99% क्वेश्चंस में। और f of x plus y plus z will be replaced by f of h and h to the power l plus m plus n minus 1 into dh। तो सर आपको कंपेयर करना है इन पावर्स को l minus 1, m minus 1, n minus 1 से। So l minus 1 equal to minus half, m minus 1 equal to minus half, n minus 1 equal to minus half, and then you will find l equal to half, m equal to half, n equal to half। ऐसे ठीक बात समझ में आ गई। उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो गामा हाफ इंटू गामा हाफ होल अपॉन तीनों का सम l प्लस m प्लस n मीन्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इट विल बिकम 3/2 गामा 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू h लिमिट 0 टू h। अब देख रहे हो आप यहां पर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड को h से रिप्लेस करना है जहां भी फंक्शन है। ये है ना फंक्शन, देखो 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट। सो यू हैव टू रिप्लेस दिस x प्लस वाई प्लस जेड बाई h। तो देखो ना सर क्या होगा 1 माइनस एच, दिस विल बिकम 1 माइनस एच और बाकी h टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1। तो देखो यहां ये 1/2 1 से कैंसिल होगा तो h की पावर 1/2 ही तो बचेगा और वो h की पावर 1/2 हमने 1 माइनस h के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दी, देन इट विल बिकम h टू द पावर 1/2 एंड माइनस h टू द पावर 3/2 dh। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, समझ गए? और बाहर देखो यहां रूट पाई ये गामा की वैल्यू है, 3/2 का 1/2 रूट पाई। तो यहां से आप एक ये 1 गामा रूट पाई से रूट पाई कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 2 रूट पाई इंटू रूट पाई पाई। तो ये क्या लिखा है 2h नहीं पाई, तो 2 पाई और आ जाएगा यहां पर, ये 2 पाई इंटू h टू द पावर 1/2 माइनस h टू द पावर 3/2 इंटू dh। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, x टू द पावर n से कैसे होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर होगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 करेंगे और यहां होगा 5/2 अपॉन 5/2 ऐसे h टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 घूमकर 2/3 कर दिया, h टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 इसे घुमाकर 2/5 कर दिया, लिमिट 0 टू 1। अब जैसे आप इसमें रखेंगे तो 2/3 माइनस 2/5 और ये सिंप्लीफाई होकर 4/15 और ये 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई/15। सो सिंपली you have to replace the function of x plus y plus z with h। तो जैसे यहां 1 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड लिखा था ये वाला, तो इसे h से रिप्लेस कर दो तो 1 माइनस h और बाकी h टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1। आगे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताओ समझ में आ गया आपको लियो वैलिस थ्योरम कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं? एक दो सवाल और दिखा देता हूं आपको ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, can you see here dx dy dz whole upon root 1 minus x square y square z square। अब इसमें सिंपली सीधा x प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, तो क्या करना है ध्यान देना। अगर हम इसे ऐसे लिख दें ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx dy dz अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपके सामने लिखा है जो,
और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ही यू वी डब्ल्यू कंसिडर कर ले। क्या कंसिडर करें? यू वी डब्ल्यू। देखो अगर हम इसे यू वी डब्ल्यू मान ले तो देखो कैसे होगा, ध्यान दो। एक्स स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर को वी, जेड स्क्वायर को डब्ल्यू मानते ही ये बन जाएगा यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, तीनों वेरिएबल्स का सम यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। बाकी यहां देखो एक्स की वैल्यू यू की पावर हाफ, y की वैल्यू v टू द पावर हाफ, z की वैल्यू w टू द पावर हाफ, एंड वी विल फाइंड dx dy dz आफ्टर डिफरेंशिएशन। क्या क्या आएगा? 1/2 u माइनस हाफ du, 1/2 v टू द पावर माइनस हाफ dv एंड 1/2 w टू द पावर माइनस हाफ dw। फिर इन सब के बदले ये वैल्यूज रख दो, तो देखो ना dx dy dz इसकी जगह 1/2 1/2 1/2 it will become 1/8 u to the power minus half, v to the power minus half, w to the power minus half, du dv dw. This is replaced by dx dy dz. और नीचे देखो 1 माइनस ये हो गया u, ये v और ये w, तो 1 माइनस u प्लस v प्लस w। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये एक्सटेंशन बना कि यहां तीन वेरिएबल का सम हो रहा है। देखो u प्लस v प्लस w। अब यहां लियोवेलिस थ्योरम लगेगा, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, तो इस लियोवेलिस थ्योरम को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ h और गामा l गामा m गामा n होल अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। दिख रहा है? l प्लस m प्लस n 0 to 1 f of h h टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी एच। और एलिमेंट कहां से मिलेंगे? ये देखो ना u v w की पावर माइनस हाफ है, सो कंपेयर इट l माइनस 1 विद माइनस हाफ, m माइनस 1 विद माइनस हाफ, n माइनस 1 विद माइनस हाफ, एंड देन l इक्वल टू हाफ, m इक्वल टू हाफ, n इक्वल टू हाफ। देन यहां वैल्यू रखो हाफ 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 प्लस 3/2 f ऑफ h, h मतलब ये देखो 1 माइनस ये जो हमने लिखा u प्लस v प्लस w, तो 1 माइनस रूट में 1 माइनस h हो जाएगा इसका। तो देखो फिर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ अपॉन 3 का सम 3/2 0 to 1 1 अपॉन रूट 1 माइनस h। ये h कहां से आ रहा है सर? देखो ना ये जो लिखा है ये वाला, इस टर्म को h से रिप्लेस करना है और h की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1, तो यहां 1 अपॉन रूट 1 माइनस h एंड h टू द पावर 1/2 1/2 1/2 माइनस 1। तो कैंसिल होने के बाद ये भी रूट h ही बचेगा और यू कैन राइट इट इन कंप्लीट रूट h अपॉन 1 माइनस h का स्क्वायर रूट। बाकी ये सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे। गामा हाफ 1/2 गामा हाफ कितना होता है? रूट पाई रूट पाई रूट पाई, और ये 3/2 को एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 रूट पाई। ठीक है, 1/8 और इसके साथ है। बाकी थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाय 4 हो जाएंगे, 2 4 जा ऐसे, और ये रूट पाई से रूट पाई, पाई इंटू पाई है ना, और ये 2 4 जा, तो क्या कर सकते हैं इसको पाई बाय 4 बना दो अलग से। और ये कैसे सॉल्व होगा? By the substitution of trigonometric function h equal to sin square theta, you can substitute it, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वो बच्चों वाले मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? dh इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, लोअर लिमिट रखेंगे h 0 तो sin 0 0 होता है, थीटा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट 1 रखेंगे तो sin में 1 π/2 की वैल्यू होती है, तो अपर लिमिट π/2 हो जाएगी। देन लिमिट विल बिकम 0 to π/2 अंडर द रूट h की वैल्यू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अगेन sin स्क्वायर, एंड dh विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा तो cos हो जाएगा, और वो cos इस cos को कट कर देगा, और यहां sin की पावर 1 बचेगी, एक sin पहले से लिखा है तो sin स्क्वायर हो जाएगा, cos कैंसिल, cos 0 कर दो, और जो 2 है उसे बाहर ले आओ तो π/2 बना देंगे। ये वाला 2 जो है ये वाला इसको कैंसिल करेगा 4 को, तो π/2 कर सकते हैं। So finally π/2 0 to π/2 sin square and cos 0। अब इसमें आप ओरिजिनल फॉर्मूला लगा दो, ये भी हमने पढ़ा था। देखो ओरिजिनल फॉर्मूला गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में 0 to π/2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to gamma m into gamma n whole upon gamma m plus n। तो सर इसको कंपेयर करेंगे 2m minus 1 से और इसे 2n minus 1 से, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला इसमें लगा दो आप, तो इसीलिए तो सीखा था वो। सो m कितना होगा? 3/2, n 1/2। Apply this m and n in the formula gamma m into gamma n whole upon 2 gamma m plus n। तो सर यहाँ पे रखेंगे
तो गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा, दोनों का सम 3 + 1 4/2 मतलब 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, π/2 3/2 को लिखेंगे 1/2 रूट पाई, गामा 1/2 रूट पाई, फिर से 2 इंटू गामा 2 1 होगा। फिर से देखो ये रूट पाई हो गया, 2 2 2 तीनों मिलाकर 8। तो इस तरह से π²/8 हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा एक्सटेंशन का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, फिर से रिमाइंड करके। एक और क्वेश्चन देखो ये प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। क्या लिखा है? हाँ जी, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन x + y + z। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये फंक्शन ऑफ x + y + z दिखाई दे रहा है, ये नजर आना चाहिए। जहां भी ये होगा वहां पर एक्सटेंशन लगेगा। होल स्क्वायर dx dy dz ओवर द रीजन डिफाइंड बाय x greater than 0 y greater than 0 एंड z greater than 0। वही दिया है 0 से मतलब 1 तक, x + y + z लेस देन 1 का मतलब यही होता है। सो गिवन इंटीग्रेशन, ये जो सामने आपके लिखा है गिवन इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। हमने इस गिवन इंटीग्रेशन का क्या करना है सर? देखो x + y + z को h से रिप्लेस करना है। इस कंप्लीट का होल स्क्वायर हो रखा है, तो सर Liebowitz एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ x + y + z x to the power l - 1 y to the power m - 1 z to the power n - 1 dx dy dz is equal to gamma l into gamma m into gamma n whole upon l plus m plus n। 1 नहीं होता इसमें, 0 to 1 f of h h to the power l plus m plus n minus 1 dh। तो देखो l - 1 यहां कुछ है ही नहीं, फंक्शन x to the power y to the power कुछ नहीं है ना, तो 0 0 0 कर देंगे, l - 1 0 m - 1 0 n - 1 0। नहीं समझे बात को? देखो ऐसे समझो कि x y z तो इसमें है ही नहीं ना, तो x to the power 0 y to the power 0 z to the power 0 ऐसे लिखेंगे। सो कंपेयर किससे करोगे? x y z की पावर से, l - 1 0 m - 1 0 n - 1 0। समझ गए? तो l 1 1 m भी 1 और n भी 1 हो गया तीनों। सो गामा i इज इक्वल टू गामा 1 गामा 1 गामा 1 होल अपॉन गामा 3 ऐसे करके लिख देंगे। सही है? 0 to 1 h to the power h + 1 की पावर 2। ये कैसे हुआ बताओ? ये वाला टर्म बताओ कैसे आया? ये ऐसे है सर कि यहाँ x + y + z को h रखना है +1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज, एंड h to the power ये l + m + n - 1 होता है, तो यहाँ 1 + 1 + 1 - 1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, h की पावर 2 बचेगा। उस h की पावर 2 को हमने यहां लिखा और h + 1 का होल स्क्वायर खोल दिया। फिर इस h स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, क्या होगा? h4 2h, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करके लिखा है h4 2h³ h स्क्वायर, और ये बाहर वाले तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, गामा 1 1 1 ये 1 होता है, नीचे 3 को लिखेंगे 2 × 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 1/2 1/2। h4 h5/5 h³ h4/4 जो कि 2 से कैंसिल होकर h2 4/2 हो जाएगा, और h स्क्वायर h³/3 एंड लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट रखो 1, तो 1/5 1/2 1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 31/60। दिस इज डायरेक्ट आंसर। देखो 15 मार्क्स में इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, बट आपको ये ना फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, पहले वो याद रहे और दूसरी बात उसे अप्लाई कैसे करना है। x + y + z को h रखेंगे, और जैसे आप उसे h रखेंगे तो फंक्शन ऑफ h और h to the power l + m + n - 1 एंड देन सिंप्लीफाई इट एंड अलजेब्राइक फॉर्मूला x to the power n + 1 अपॉन n + 1, उससे हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बाकी लिमिट रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इतने आसान भी आ जाते हैं। समझ में आया? एक और सवाल है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है फॉर आईएएस। क्या लिखा है सर? इवेल्युएट लॉग ऑफ x + y + z। अब साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ x + y + z दिख रहा है ना? तो जहां भी इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन और तीनों का सम हो तो लिबेलिज एक्सटेंशन वहां पर अप्लाई होगा। The integral being extended all positive values of the variable x y z subject to the condition x + y + z less than equal to 1। ये किसके लिए होता है? लिमिट के लिए होता है, 0 to 1 के लिए। इसलिए मैंने कहा था मैक्सिमम क्वेश्चंस में लिमिट 0 to 1 ही रहेगी। तो हमने पहले इंटीग्रेशन को लिखा, ड्यू टू x + y + z दिस टर्म वी विल अप्लाई लिबेलिज थ्योरम, फंक्शन ऑफ x + y + z x y z to the power l - 1 m - 1 n - 1। तो क्या करेंगे सर?
this x plus y plus z will be replaced by h, function of h, and s to the power l plus m plus n minus 1, like that. अब फिर से देखो आप यहाँ x plus y plus z के अलावा फंक्शन में तो कुछ भी नहीं लिखा, x y z की कुछ पावर्स नहीं है। जब पावर्स नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं x to the power 0, y to the power 0, z to the power 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाले, ये टर्म्स, ये वाली टर्म्स कैसे दिखाऊं, चलो ये तीनों टर्म्स जो हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी है, आपको रेड कर देता हूं इसको भी। अब समझ में आ गया होगा, जो टर्म नहीं है उसे x की पावर 0 0 0 बना लो, y की पावर 0, z की पावर 0, तो l minus 1 0, m minus 1 0, n minus 1 0 means lmn की वैल्यू 1 1 1. Then apply the formula gamma 1 gamma 1 gamma 1 upon sum of these three gamma 3. Limit 0 to 1 log function of h का, तो log h बना देंगे into h to the power 1 plus 1 plus 1 3 minus 1 मतलब 2 h square. और उसके बाद सिंपली इसमें बाई पार्ट रूल लगाना, आपको 3 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। देखो पहले हमने लगाया इसके अंदर 1/2 0 to 1 h स्क्वायर log h dh, तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा सर। log h एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन होता है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो log h एज इट इज सेकंड h स्क्वायर का इंटीग्रेशन h³ माइनस, अब log h का डिफरेंशिएशन 1/h और h³ ये हमने एज इट इज छाप दिया। ठीक है, आगे समझ, ये वाला इसको ऐसे लिख दिया हमने। फिर ये कैंसिल होगा, एक h से h कैंसिल, h स्क्वायर आएगा, अगेन h स्क्वायर का इंटीग्रेशन h³ और 3 पहले से है तो h³ हो जाएगा, ये वाला h³ और ये h³ log h एज इट इज। अपर लिमिट रखेंगे 1, तो h³ यानी 1/3 log 1 0, तो फर्स्ट टर्म 0 यहाँ रखेंगे तो 1/9 माइनस 1/9, और लोअर टर्म 0 रखेंगे तो 0 h की वजह से 0, ये भी 0, लोअर टर्म पूरा 0। सो कंप्लीटली आप इसका -1/9 इंटू 1/2 करेंगे तो -1/18 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में पूछा गया है यूपीएससी आईएएस के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक छोटा सा असाइनमेंट बनाया मैंने आपके लिए इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, 4 सवाल हैं, एक बार इनको पॉज करके आप देख लीजिएगा, है ना, और इनको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ या जितने भी इससे रिलेटेड पीडीएफ हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कोर्सेज यूपीएससी आईएएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या गेट एग्जाम के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ भी पढ़ना है तो हमारे इन नंबर्स पर या इन सोशल मीडिया लिंक्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं जो इसमें हम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप अपने सजेशन जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।